إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے. تعارف قرآن کے حوالے سے یہ آخری لیکچر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو سورہ الفاتحہ سے باقاعدہ قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کریں گے. ہم پورے قرآن مجید کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے ہر ایج کے لوگ، بچے اور جوان، مرد و خواتین ان لیکچرز کی روح سے قرآن مجید کو بآسانی سمجھ پائیں گے. تو آئیے تعارف قرآن کے حوالے سے آخری لیکچر کی طرف چلتے ہیں. آج کے لیکچر کا سوال ہے، قرآن مجید ہم سے کیا ڈیمانڈ یا تقاضا کرتا ہے، یا قرآن مجید اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے. دیکھیے، ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس قدر اور کس نوعیت کا ہے. امت مسلمہ کے زوال کی اشکال پر اگر ہم غور کریں تو اس کے پس منظر میں وجوہات کے تمام تانے بانے اس بات پر آ کر کے ملتے ہیں کہ ہم نے جہاں احکامات الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیا ہے، وہاں قرآن مجید کے حقوق یعنی اس پر ایمان لانا، اس کے احکامات کو شعوری طور پر دل و جان سے قبول کرنا، اس کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں غفلت برت کر زوال کی ان تمام اشکال کو ہم نے خود پیدا کیا ہے جس کا اس وقت امت مسلمہ شکار ہے. قرآن مجید پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پر دھیان دیتے ہیں. قرآن مجید پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے احکامات کو شعوری طور پر بلا کم و کاست قبول کر لیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہے. تاریخ انسانی کی ابتدا سے قیامت تک اللہ کے دین کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو ایک ہی قرآنی آیت میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسری شے کو شریک نہ کرو. یہی قرآن کی بنیادی تعلیم ہے جسے ہم اپنے سابقہ لیکچرز میں بار بار انسان کی تخلیق کا مقصد بندگی رب کے طور پر انٹروڈیوس کرا چکے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اتنی خوش نصیب نہیں جس کے پاس ایسی کتاب ہو جو امت مسلمہ کے پاس ہے، اور کوئی قوم ایسی بد نصیب بھی نہیں جو اس عظیم کتاب کی شناخت کرنے اور اس سے تعلق جوڑنے سے گریزاں ہو. یہاں پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ قرآن کا جتنا احترام ہم کرتے ہیں وہ اس کی قدر شناسی اور شناخت کا ثبوت ہے کہ یہاں تک کہ کسی اہم معاملہ کے حوالے سے قسم کھانا مطلوب ہو تو اس کتاب سے بڑھ کر ہم کسی کتاب کو قسم کے لائق نہیں سمجھتے. گھر میں اونچی جگہ پر اس کتاب کو ہم رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز سے کہ اسے رکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے. ہم تو اسے غلاف میں لپیٹ کر آنکھوں سے لگا کر چومنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم میں سے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو اس کی رخصتی کا بندوبست ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں. اگر ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید کی شناخت اور تعلق جوڑنے سے مراد صرف یہی کچھ ہے تو پھر میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا قرآن مجید کے نزول کے یہی مقاصد ہیں؟ میں یہاں پر قرآن مجید کے احترام میں خدا نخواستہ کمی کی بات نہیں کر رہا. یہ تو حقیقت ہے کہ اس کتاب کا جتنا احترام کیا جائے کم ہے، لیکن قرآن مجید کے اس احترام کی آڑ میں اس کے اصل ہدف اور اس کے نزول کے مقصد سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. لہذا یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کا ہم پر کیا حق ہے اور اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے. اگر ہم نے اس کے حقوق کو نہ پہچانا اور اس کی ڈیمانڈز کو نہ جانا تو احترام کے وہ سب انداز جو میں نے اوپر ذکر کیے ہیں کرنے کے باوجود ہم وہ بد نصیب قوم کے طور پر دنیا سے گزرتے چلے جائیں گے جو قرآن جیسی عظیم کتاب کی ناقدری کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہوں. کیونکہ جس انداز کا احترام قرآن مجید کا ہم کرتے ہیں اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن قرآن مجید کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو ہرگز پورا نہیں کرتا. کیونکہ قرآن مجید کتاب انقلاب ہے جس نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رہنمائی کر کے پوری دنیا پر ایک عالمگیر انقلاب لا کر اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ یہ کتاب ایصال ثواب ہی نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے.
यहाँ पर फिर सवाल बनता है कि फिर कुरान मजीद के हम पर क्या हकूक़ हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं। इस किताब का सबसे पहला हक़ जो उम्मत मुस्लिमा पर है वो इस पर ईमान लाना। अब हमारे जहनों में ये बात खटक रही है कि क्या हम कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाते, तो इसके जवाब में मैं अर्ज़ करूँगा कि ईमान की तकमील ज़बानी इकरार के बाद अमल से मुकम्मल होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ईमान महज ज़बानी दावे का नाम नहीं है, बल्कि कुरान पर ईमान अमल से मंसूब है, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमसे यही डिमांड है। इसी बात को सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 121 में इस तरह से बयान किया गया है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक़ है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र का रवैया अख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। इसी तरह सूरह इब्राहीम आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ऐ मोहम्मद, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। चलिए यहाँ पर मैं और आप ज़रा ये सोचते हैं, क्या बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम तारीकियों में हैं या फिर इन रोशनियों में ही अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं जिनका तसव्वुर कुरान ने दिया है, यानी हिदायत की रोशनियाँ? इस बात का जवाब हमें अपने आप को खुद ही देना होगा। इसको मैं आप पर और अपने आप पर छोड़ता हूँ। देखिए, कुरान मजीद वो किताब इलाही है जो लोगों को गुमराही से निकालने का ज़रिया है। तिरमिज़ी शरीफ की तवील हदीस के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गैर कुरान यानी कुरान के अलावा हिदायत का मुतलाशी होगा, अल्लाह इसको गुमराह कर देगा। वो यानी कुरान मजीद अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है, और वो एक महकम और मजबूत ज़िक्र है और एक सीधा रास्ता है। हकीकत ये है, अगर उम्मत मुस्लिमा में पाई जाने वाली गुमराहियों के असबाब तलाश करने की कोशिश की जाए तो यही एक हदीस ही काफ़ी होगी कि यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारी रहनुमाई के वो तमाम ज़राए जिनकी हम तकलीद करते हैं कुरान के अलावा नहीं हैं। यहाँ पर मैं और आप सोच लेते हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए कुरान ही से रहनुमाई लेते हैं? इसका जवाब भी हमें अपने आप पर ही छोड़ना होगा। बहैसियत मुसलमान हमारा हाल ये है कि हम इस मुस्तनद और मुसल्लिमा हिदायत नामा को रखने के बावजूद दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन इस कुरान मजीद से फैज़याब होने की तौफीक हमें नहीं मिलती, और ना ही हम इस तरफ आते हैं। और रही सही कसर हमारी नाम नहाद पेशवाई के चंद लोग ये कहकर उम्मत के कुछ अफराद को मुश्किल में डाल देते हैं कि कुरान मजीद को समझना आम आदमी के बस का काम नहीं। हकीकत ये है कि हमने इस किताब को किताब हिदायत की बजाय किताब इसाले सवाब बना दिया है। ये किताब तो जिंदों के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी, लेकिन हमने इसे मुर्दों के लिए मुख्तस कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि कुरान के नूर होने के बावजूद हम इसकी हिदायत और रोशनी से महरूम हैं। यहाँ पर मैं हदीस मुबारका की रोशनी में एक और हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक तवील हदीस का खुलासा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से एक गिरोह ऐसा पैदा होगा कि वो कुरान की तिलावत करेंगे लेकिन वो उनके हल्क से नीचे न उतरेगा। इस्लाम से वो ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर निकल जाता है। एक दूसरी तवील हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को ख़बरदार फरमाया है कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग कुरान पढ़ रहे होंगे लेकिन वो उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, यानी दिल तक नहीं पहुँचेगा। सिर्फ ज़बान और हल्क की मश्क होगी, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कोई फ़र्क ना होगा, लेकिन ना वो इसके मफ़हूम से आशना होंगे, न इसकी कैफियत को महसूस करेंगे, न इसके अहकामात को जानेंगे, और ना ही इस पर अमल की रग़बत रखते होंगे। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हल्क से नीचे कुरान का ना उतरने से क्या मतलब है। देखिए, बिगाड़ के हवाले से जितनी भी बीमारियाँ, मसलन शिर्क व नफाक, फिस्क व फजूर, या जो भी रूहानी बीमारियाँ हैं, इन सब का घर इंसान का दिल है और इन सब का इलाज कुरान है। अब वो कुरान यानी इलाज जो दिल की बीमारी की शिफा है, अगर हल्क से नीचे उतर कर दिल में ही नहीं जाएगा
जो बीमारियों का घर है, तो बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन होगा। यहाँ पर हमें संजीदगी से गौर करना होगा कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ किस हद तक है और किस नौइयत का है। क्या ऐसा नहीं है कि हमने इसे फरामोश कर दिया है और इसकी कैफियत को हल्क से नीचे उतारने की राहें हमने खुद बंद करके महज इसे तिलावत की किताब बना दिया है। हम अपना ताल्लुक़ कुरान से ज़बानी हद तक तो निभाते हैं, लेकिन हमारा अमल कुरान से तर्क ताल्लुक़ वाला ही है। हमें अपनी रविश को बदलना होगा, हमें कुरान से ताल्लुक़ को निभाना होगा और अपनी कैफियत के स्टेटस को के दायरे से बाहर निकल कर इसको समझना होगा और इसके साथ इस पर अमल का मुआहदा करना होगा, क्योंकि यही वो किताब है जो हयात इंसानी पर असरअंदाज होकर इंसान को बिल्कुल खर्रा और सच्चा इंसान बना देती है। लेकिन इसके लिए शर्त है हम इससे संजीदगी के साथ दोस्ती और हकीकी ताल्लुक़ का हाथ बढ़ाएं। इससे दोस्ती और ताल्लुक़ तय किए बगैर हम इसको महज तिलावत की किताब की हद तक तो इससे मुतारिफ रहेंगे, लेकिन इसकी हकीकी तासीर से हम महरूम रहेंगे। हमारा दावा है कि कुरान हमारा है और हम इसके हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये हमारा है लेकिन हम इसके नहीं हैं। हमें इसका होना होगा, इसको समझना होगा और इस पर अमल करना होगा, क्योंकि यही वो किताब है जो हमें दुनिया की इमामत की मसनदों पर बिठा सकती है और अल्लाह ताला के यहाँ हमारी कामयाबी और शफात का समा पैदा कर सकती है। ये है आज के लेक्चर के हवाले से बहस, जिसमें हमने कुरान मजीद की हमसे क्या डिमांड या तकाजा है या कुरान और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक़ होना चाहिए के हवाले से अपनी गुफ्तगू आपके सामने पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही तारुफ़ कुरान के हवाले से 15 लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरह अल-फातिहा से शुरू करेंगे और फिर इसी तरह कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर इस अंदाज़ में बयान करेंगे कि हर एज के लोग, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, बच्चे हों या जवान, कुरान फहमी के छोटे छोटे लेक्चर्स के हवाले से कुरान मजीद को बआसानी समझ पाएंगे। तो फिर आइए फ़िक्र कुरान की तरफ, दावत कुरान की तरफ, रूह कुरान की तरफ, ताकि कुरान का हकीकी तसव्वुर लेकर हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी नस्लों की ज़िंदगियाँ अपने रब की मर्ज़ी की राह पर डाल सकें। कुरान फहमी की तरवीज हमारा मिशन है, हम अपने इस मिशन में आपको दावत देते रहे हैं। कुरान फहमी की तरवीज हमारा मिशन है, हम अपने इस मिशन में आपको दावत देते हैं कि आइए कुरान की तरफ। तो फिर आइए तहरीक कुरान फहमी की बुनियाद पर अल्लाह के दीन के गलबे की अमली जद्दोजहद में शामिल हों, लेकिन शर्त यह है कि कुरान मजीद को समझने के मिशन की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।